When it comes to the NLSAT examination, management of time becomes very important and becomes sort of difficult also. And the same problem is being faced by students जो लोग already mocks दे रहे हैं, and they've been telling me कि time management नहीं हो पा रहा है and it's taking long to read the passages. So how to go about it? I'm going to share some tips with you in this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations, and welcome to Law Digest. सबसे पहले जब आप पार्ट ए पढ़ रहे हो, you're reading those passages, so you have to try that you read in one go so that you don't have to read it again and again. Every paragraph, it is not required कि जब आप पहले passage पढ़े then you attempt the questions, and when you're attempting the questions, you, in order to figure out the answers, you're reading the passages or the paragraphs again. That will not make sense. What you have to try is कि आप एक बार में अच्छे से with full concentration एक passage पढ़ लें. Once you're done with that, simultaneously what you have to do is on the side, using a pencil or anything, आपको side में note down करना है, या अपना rough paper रखिए साथ में and वहाँ पे note down कर लीजिए कि paragraph 1 में ये बोला है, 2, and उसमें भी आपको detail में नहीं लिखना है कि it speaks about this and that and how it works. ऐसा नहीं लिखना है. You just have to pick the keyword of the whole paragraph कि अगर इससे related question है तो वो यहाँ से deal होगा. जैसे sample आपने देखा था इनके sample questions में वॉरेन बुफे पे जैसे question आया था. So in one paragraph you can put on the side. मैंने वो आपको solve करने में भी आपको दिखाया था कि कैसे आप side में लिख सकते हो वहाँ पे that this is speaking about ChatGPT 2, this is speaking about author's view on how ChatGPT is an investor, can give an advice to an investor, things like that. तो basic आपको लिख लेना है. Then also one thing, then when you're reading questions, ऐसा बहुत होगा कि जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस होंगे वो आपको या तो पता है या बिल्कुल नहीं पता. You know them directly or you just don't. So don't waste time thinking and remembering. You can do that later. बाकी और क्वेश्चंस कर लीजिए बिकॉज फिर आपको पार्ट बी करने का भी प्रेशर रहता है साथ में. सो do that. Then English, maybe you will either know it if your grammar is proper and your understanding of English as a language is proper, you will be able to deal with the questions easily. But if you are taking time, if you're thinking about it, then skip. Don't get emotionally attached to one particular question. Try to give it some time and move it to the next question अगर नहीं आ रहा है. We have 150 minutes in hand, so we have to divide them into 75 minutes and 75 minutes अगर हम बोलें. अब 75 minutes अगर हम divide करते हैं तो जो हमारा पार्ट ए के क्वेश्चंस हैं वो तो टोटल हमारे पास 75 क्वेश्चंस हैं. तो वन क्वेश्चन के लिए you have 1 minute each. So how will you go about it then? तो वो टाइम हमारा यहीं से निकलेगा कि हम एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें. वी फिगर आउट कि अगर अच्छा नहीं आंसर आ रहा है, वील स्किप इट एंड वील कम बैक टू इट लेटर. फर्स्ट लेट अस ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. देन करंट अफेयर्स इंग्लिश के या तो पता है या नहीं पता है, तो 1 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने में और आंसर में नहीं लगेगा. मे बी यू विल टेक अबाउट 40 सेकेंड्स. तो वो जो 20 सेकेंड्स बचेंगे उसमें यू विल बी एबल टू मैनेज जहाँ कहीं भी आप अटकते हैं. दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टाइम लाइन दैट आई एम गिविंग यू बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बिकम्स डिफिकल्ट. अगर हम पार्ट बी की बात करें तो स्टूडेंट्स टेक टाइम टू रीड द होल क्वेश्चन एंड फिगर आउट. वहाँ पे सोचना भी पड़ता है क्या रीजनिंग, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस नहीं होते हैं. सो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. प्लस यू हैव टू राइट ऑल्सो. सो आई एम कीपिंग कि आपको 10 मिनट है फॉर वन क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, अपने कीवर्ड्स भी जॉट डाउन करने हैं, अपनी रीजनिंग भी जॉट डाउन करनी है, एंड यू हैव टू राइट द आंसर एज वेल. सो इफ वी हैव 10 मिनट्स देयर, वी हैव 7 क्वेश्चंस. अब 7 क्वेश्चंस में वी गेट अबाउट 70 मिनट्स, बट इन द ऐसे पार्ट यू विल नीड मोर टाइम. सो 75 मिनट सॉर्ट ऑफ आपको वहां भी चाहिए. तो दोनों पैसेजेस जो आपका पार्ट ए है पार्ट बी है, दोनों के लिए आपको सॉर्ट ऑफ इक्वल टाइम ही लगेगा. विच इज वाई आई वुड से कि आपको स्टार्टिंग से ही अपने टोज पे रहना है. यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेल. 75 मिनट्स में अपना प्लीज जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए. वन थिंग आई टेल यू कि बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अच्छा ये ट्रिक्स हम सीधे एग्जाम में अप्लाई कर
लेंगे, ऐसा हम एग्जाम में अप्लाई कर लेंगे, बट दैट डज नॉट वर्क देयर डायरेक्टली अनलेस यू पुट योर सेल्फ थ्रू इट। वो एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। अभी आपके पास फिर भी यू हैव अबाउट 15 days or so, less than 15 days, but you can bring it to practice, start कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, अभी से ही उसको पुट इट ऑन। मॉक टेस्ट में ऑब्वियसली आपके पास टाइमर होता है, बट देन अगेन यू हैव टू डिवाइड इट बाय योर सेल्फ कि 75 मिनट्स आप बाय वॉच यू सी कि 75 मिनट्स जब हो जाते हैं पार्ट ए के, देन दैट प्रेशर किक्स ऑन, देन यू हैव टू बी रियली क्विक विद आंसरिंग बिकॉज आपको पूरा पार्ट बी भी करना है। एंड ऐसा कोई वो भी नहीं है कि आपको सेक्शन वाइज करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी कर सकते हैं कि पार्ट बी पहले लिख सकते हो फिर पार्ट ए कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली पार्ट ए पहले कर लो तो बेटर है, बिकॉज पार्ट ए विल हैव अ लॉट ऑफ पैसेजेस एंड वो बार बार उसके ऊपर यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, इट गेट्स टीडियस बिकॉज यू हैव रिटन ऑलरेडी एंड यू आर एग्जॉस्टेड एंड देन यू वुड नॉट वांट टू रीड अगेन। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो डिसाइड कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हो एंड उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करो। देन इफ यू फाइंड दैट टू ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, सो यू विल नेचुरली उस केस में आपको थोड़ा सा पैसेज रेपिटेशन, जो पैराग्राफ में आपका आंसर दिया है वो वापस से पढ़ना पड़ेगा टू गेट अ बेटर आइडिया। अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आप पैसेज रीड कर रहे हो ट्राई टू स्किम थ्रू द पैसेज। कुछ कुछ पार्ट्स आप स्किम कर सकते हो, जैसे देर आर सर्टेन थिंग्स, कोई फैक्ट्स दिए हुए हैं, फैक्ट्स फिगर्स वगैरह मेंशन है, कुछ कोट्स में मेंशनड है, तो वो एज इट इज स्टेटमेंट है, यू कैन रीड दैट लेटर। आप पैसेज पढ़ लो, अगर उस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन है तो बात अलग है, नहीं है तो देन स्किप दैट फैक्ट, दैट माइट नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट। थोड़ी ये टेक्निक्स हमको लगानी पड़ेंगी ताकि हम अपने लिए टाइम बना सके। देन आई वुड से कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, उनको कैसे टैकल करें। तो उसमें क्या ट्रिक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कोई स्टेटमेंट दे दी क्वेश्चन में और बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्ट्रेंथन और वीकन। तो अगर स्टेटमेंट मान लीजिए ये लिखी है दैट इफ मैरिटल रेप इज क्रिमिनलाइज्ड इट विल लीड टू मिसयूज। ठीक है, अब पहले आप सबसे पहले ये पढ़ते ही स्टेटमेंट को समझो, अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट। अगर आप उसको एक क्वेश्चन की तरह लोगे, सिर्फ यू विल कीप दैट रिपीटिंग दैट लाइन इन योर हेड, देन इट वोंट वर्क। आपको क्या सोचना है कि ओके हियर द स्टेटमेंट व्हाट इज सेड इज कि अगर ये क्रिमिनलाइज हो जाएगा, इफ वी मेक इट पनिशेबल, सो क्रिमिनलाइज को हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया अपने वर्ड्स में, इफ मैरिटल रेप इज मेड पनिशेबल देन इट कैन बी मिसयूज्ड। तो अब अगर इसको स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करना है तो मेरे दिमाग में क्या पॉइंट आएगा कि अगर इफ आई से कि सम women they prefer money over relationships, or they try to take advantage or things like that, so these things will strengthen the argument कि वो misuse हो सकता है। और weaken कैसे हो सकता है, if I say that the female goes through a lot, she stays quiet about it, and how can it be misused। तो you have to कॉन्स्टेंटली ऐसे क्वेश्चन में यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, अपने से क्वेश्चंस पूछिए, जो ऑप्शंस लिखे हैं उसको देखते हुए यू आस्क योरसेल्फ कि इससे क्या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। सो उसको मेरिट डीमेरिट की तरह कंसिडर कीजिए। स्टूडेंट्स वो स्ट्रेंथन वीकन देख के स्टूडेंट्स थोड़ा सा डर जाते हैं, बट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट इन योर हेड, एंड आई थिंक दिस इज हाउ इट मे बिकम ईजियर कि आप वो स्टेटमेंट को पहले अपनी टर्म्स में, अपनी लैंग्वेज में समझ लो, मेंटली उसको समझ लो। देन जब आप पार्ट बी में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस ट्राई टू मार्क, ब्रैकेट्स लगाते जाओ रेलिवेंट फैक्ट्स के आसपास, ताकि आपको समझ में आता रहे कि अच्छा ये हमारा रेलिवेंट फैक्ट है तो ये मेरे को क्वेश्चन में कोट करना है। और अपना साइड में कीवर्ड, जो भी आपका रफ पेपर है वहां पे आप पेंसिल से या जो भी है लिख लो कि ये रेलिवेंट फैक्ट है, पिक आउट दोज रेलिवेंट फैक्ट्स। उसमें भी नॉट specifically you'll have to pick each and every fact. When I say relevant fact, it means only the fact that will help in coming to our reasoning. अगर we say कि
क्वेश्चन में किसी ने ब्लू टॉप पहना है, लड़के ने ब्लू टी शर्ट पहनी है, दैट डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि क्या ऑफेंस हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, क्या उसके पीछे रीजनिंग लगेगी, उसमें कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है. तो वो चीज फिगर आउट करने की कोशिश करो, इट बिकम्स इजियर. एंड देन की पॉइंट्स अपना लिख लो साइड में. कभी कभी यस, इट हैपेंस कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड देयर इज नो टाइम टू राइट की पॉइंट्स, तो आपको वो मेंटल नोटिंग करनी है साथ साथ. दिस एग्जाम इज अ लिटिल एग्जॉस्टिव मेंटली. तो वो अपने माइंड को अभी से इस तरह से प्रिपेयर करो कि आपको आदत हो ऐसे टेस्ट देने की. एंड if you want to practice, then you can check our mock test series that is available on our website www.lawdigest.in, जहाँ पे आपका पूरा ये पार्ट ए पार्ट बी full length tests are given. 5 tests are there and you will put yourself to a lot of practice through them, क्योंकि detailed solutions भी हमने दिए हैं and we'll be evaluating your mocks as well. तो पुट योर सेल्फ थ्रू दैट प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, ताकि एग्जाम तक आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो. की पॉइंट्स ऐसे के जरूर पहले बना लीजिए, बिकॉज इट्स गेट्स डिफिकल्ट फॉर द ऐसे टू बिल्ड द स्ट्रक्चर. सो आपको पता होना चाहिए कि अगर जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से मेरे की पॉइंट्स क्या बनते हैं, और इंट्रो और नीचे जो कंक्लूजन है वो मैं किस तरह से करूंगी, उसकी मेंटल मेकिंग अप प्लस writing on the side. It's important because essay में they'll also look at the structure and not just reasoning. तो जल्दी में क्या होता है कि हम सीक्वेंस नहीं बनाते हैं अपने आंसर का, हम सीधा लिखते चले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा हमको मेंटली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. सो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए. एंड आई रियली डोंट थिंक कि अगर आप इतना सब कुछ कर लेंगे ऑलरेडी तो बहुत ज़्यादा टफ है. ऐसा नहीं है कि द एग्जाम इज टफ. As already I had posted earlier also कि students are doing well in mocks. They've started to understand कि कैसे answers को लिखना है. तो एक बार वही चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एक दो टेस्ट आपने प्रैक्टिस किए, तो थर्ड फोर्थ टेस्ट तक यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस कि कैसे आपको एक्चुअली में आंसर राइटिंग करनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है. That is it from my side. I hope this video helped you, and just help yourself more, practice as much as you can, and subscribe to the channel ताकि ऐसी और videos के बारे में आपको पता चलता रहे. Make sure you're following us on Instagram जहाँ पर हम instant daily legal updates आपको provide करते हैं. And just in case you have anything else on your mind, drop down the same in the comment box below.